السلام علیکم۔ بسم ناظرین، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو وقت پر نماز ادا کریں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اگر آپ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ دعا کیا کریں۔ اگر آپ تکلیف سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ اگر آپ تندرستی چاہتے ہیں تو روزے رکھیں۔ اگر شفا اور سکون چاہتے ہیں تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور اگر اپنا چہرہ نورانی بنانا چاہتے ہیں تو باوضو ادا کریں۔ اگر نعمتیں چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کریں۔ سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ کا ہمسفر لکھا ہوا ہے، آپ کا کیریئر لکھا ہوا ہے، آپ کی موت بھی لکھی ہوئی ہے، تو پھر آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ پر اپنا توکل رکھیے، آپ اپنے دین پر دھیان رکھیے، باقی ساری چیزیں اللہ صحیح وقت پر آنے پر کر دے گا۔ سنو، گھبراؤ نہیں۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس نے مریم علیہ السلام کو بغیر مرد کے عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولاد نصیب فرمائی، اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچ میں راستہ بنا دیا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ وہ جنات اور پرندے، جانور اور ہواؤں کو قابو میں کر سکتے تھے، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے معاملات بہت مشکل ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کریم میں یہ نہیں پڑھا؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گھبراؤ مت، اس دور سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں، یقین رکھیے یہ بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کریم کی بے شمار راہ چھپی ہوئی ہے جو وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائیں گی، اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ کامیاب وہ نہیں جس کے پاس پیسے کی دولت ہے، کامیاب تو وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اور پھر اللہ سے دوستی ہو جائے تو بڑی سے بڑی مشکلات بھی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ کبھی کبھار ہمارا خاموش ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم سے اچھا جواب وقت لاجواب دیتا ہے۔ تم یقین رکھو اللہ پر، انشاءاللہ سب کچھ بدل جائے گا۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری دعائیں رد ہی کرنی ہوتی تو وہ تمہیں جانماز تک لاتا ہی کیوں؟ وہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ اگر میرا اللہ تمہارے اس ہاتھوں کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اگر اللہ تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا، ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا دے گا کہ جسے پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز انسان آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی تب تک کوشش رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا، تم تو دعا کرتے ہوئے معجزوں پر یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط نہیں کرتا، وہ تو خطاوند چیز کو جسے تم سے دور کیا گیا ہے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس نے اب تک سنبھال رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھال لے گا، جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو، جو تمہیں اب تک نہیں ملا اس تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے
से बात नहीं बनी तो राब्ता बढ़ा कर तो देखो, अल्लाह से मांगो और बार बार मांगो। तब तक मांगते रहो जब तक उस चीज को तुम्हारी झोली में रख नहीं देता या तुम्हारा दिल बदल नहीं देता। फलक, चांद, सितारे और कहकशा जिसने बनाए हैं वह तुम्हारे मामलात भी बना देगा। जिसने दिन और रात का निजाम संभाल रखा है वो तुम्हारा मुकद्दर भी संभाल देगा। जिसने इतनी झोलियां बन रखी हैं वो तुम्हारी झोली भी भली खाली नहीं रहने देगा। वो तुम्हारा सब्र कभी भी जाया नहीं होने देगा। वो कुन फरमाएगा और जरूर फरमाएगा। तुम उससे उम्मीद लगाए रखो, वो उस उम्मीद को कभी भी टूटने नहीं देगा। तहज्जुद के सजदों में बहाया गया एक आंसू सारी जिंदगी बदल देता है। सच्चे दिल से मांगी गई बस एक दुआ नसीब पलट देती है। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस तुम्हें यकीन रखना है, फिर वह जख्म भी भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी भर नहीं सकते, और वह किससे भी मुकम्मल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। और मत भूलो तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। और फिर जब तुम्हारा दिल तुम्हें अल्लाह के रूबरू ले जाता है तो वो तुम्हें थाम लेता है। हजारों सोए हुए लोगों में जब उसका एक बंदा तकलीफ के मारे जाग रहा हो तो वह कैसे उस एक बंदे को तड़पता हुआ छोड़ सकता है जो अपनी नींद कुर्बान करके उससे कुछ तलब करने आए। अल्लाह कैसे फिर उसे खाली हाथ जाने दे सकता है। जिसने दिन को रात में बदल डाला वह इस दिल को भी बदलेगा, और जो इस दिल को बदल सकता है वह नसीब भी बदल देगा। बस कुछ देर और हालात भी बदलेंगे और वक्त भी बदलेगा। वो कुन फरमाएगा और जग सारा बदल जाएगा। ला हासिल हासिल हो जाएगा और नामुमकिन मुमकिन बन जाएगा। और यूं तुम मुतमैन हो जाओगे यह जानकर कि जब तुम्हारे पास सब थे तब भी वो था, और जब कोई पास ना था तब भी वो तुम्हारे पास रहा। आगाज से ताम तक बस वही तुम्हारे साथ रहा। और फिर तुम समझोगे कि सिर्फ उसका होना कितना बेहतर था। अल्लाह तुम्हारी दुआएं कभी भी रद्द नहीं करता और ना वह तुम्हारी सदाओं को नजरअंदाज करता है। वह खालिक कायनात है, उसके अपने मामलात हैं, उसकी कबूलियत के अपने तरीके हैं, उसका कुन फरमाने का एक अपना मुनफरिद अंदाज है। आप उसके अपने रंग हैं जिनमें वह उन्हीं को ढाल लेता है जो उसकी मसलियतों पर तराज नहीं करते। तुम्हें बस यकीन रखना है कि जो तुम्हारा है उस तक तुम्हें पहुंचना नहीं पड़ेगा, बल्कि वह खुद रास्ता ढूंढकर तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। यह दुख तो बस तुम्हें अल्लाह से आसना कराने के लिए आते हैं, और उदासी तुम्हारा इम्तिहान होती है कि कब तक इंतजार करते हो। फिर तुम्हें वह सब वापस दे दिया जाता है जिसके बारे में तुम अल्लाह से बात किया करते थे, अल्लाह के सामने रोया करते थे, अपने दर्द की दास्तान सुनाया करते थे। अगर अल्लाह कुछ महरूमियों को हमारी जात का हिस्सा बनाता है तो बहुत सी रहमतों से भी हमें नवाजता है। अगर वह कोई दास्तान अधूरी छोड़ता है तो बहुत से किस्सों को उनके पुरसुकून काम तक दिलाता है। जिंदगी इसी का नाम, कुछ मिल गया और कुछ खो दिया। जो सब्र नहीं करते वह हमेशा बेचैनी में मुब्तला रहते हैं, और जो सब्र कर लेते हैं अल्लाह उन्हें अपनी चाहत में सुकून दे देता है। तो फिर क्यों जुल्म कर रहे हो खुद पर? उसकी चाहत को अव्वल रखोगे तो वह तुम्हारा हर खतामुल बना देगा। तुम वाकिफ नहीं, शायद तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है। यूं मायूस बैठे रहने से क्या होगा? मोजिजा तो अल्लाह के रूबरू खड़ा होने से होगा। यकीन का दावा करते हो तो यकीन रखो भी, यह सोच करके घबराते हो कि आगे क्या होगा। जानते हो क्यों यह बेचैनी तुम्हें सताती है? तुम जल्दबाजी तुम्हें थका रही है। तुम हर बार नाफरमानी करते हो अल्लाह के फैसलों की, मगर आखिर में उसी की मोहब्बत हर बार तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से बचाती है। लेकिन तुम्हें हर हिफाजत सजा ही नजर आती है। तुम देखते नहीं, और जिंदगी तुम्हें हर एक की हकीकत दिखाती है। जिसने सुना है तुम्हें हर दफा उसकी बस एक दफा सुन लेने से क्या होगा? काफी करके देखो अल्लाह को, फिर तुम्हें कुछ भी ना चाहिए होगा। उसकी चाहत को चाहो फिर वही मिलेगा जो तुमने चाहा होगा। तुम राजी रखो उसे, फिर वही होगा जिस पर तुम्हारा दिल राजी होगा। सब का सब तुम्हारा जब तुम्हारा कारसाज अल्लाह होगा,
اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر سے نواز دے گا۔ انسان کی خواہش سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کی تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا اس کا فیصلہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو ملنا ہے آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں، وہ آپ ہی کی ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی۔ مگر جو چیز آپ کو نہیں ملنا وہ کسی بھی حال میں آپ کو نہیں ملے گی، آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ انسان کا مسئلہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، آنے والی چیز کی خوشی اسے مسرور نہیں کرتی۔ تمہیں پتا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم نے اپنے فیصلے اللہ پر تو چھوڑ دیے ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑے، تو تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہو۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کشتی آر لگے یا پار، اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے میں ڈوب بھی گیا تو میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار و فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ تک کے رخ کو بدلنے پر قادر ہے۔ تمہاری مکھلی دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے، اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی۔ یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہاری یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور آس تمہارے لیے فیاکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس سے دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن تم کہے گا بس جلدی نہ کرو اور یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کرو، اپنی تقوی اور توقع کو مضبوط رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر توقع مضبوط ہو تو کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک تم کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں حاصل کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس لاچار مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے جس وقت آپ کو چاہیے آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں کہ تم پانے کی کوشش ہی نہ کرو۔ حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ جو لوگ بغیر کوشش کیے ہی اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں، آخر میں سارا نظام قسمت یا نصیب پر ڈال کر چھوڑ کر خود کو تسلی دیتے ہیں، وہ واقعی اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں وہ چیز ملے، کیونکہ تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں۔ اگر کوشش کرو گے تو ضرور ملے گا، کیونکہ صلہ اللہ نے دینا ہے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزات ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہو سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ جب تمام راستے بند نظر آئے اور سب ناممکن لگے تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن بھی
में भी अल्लाह ने यकीन रखने वालों के लिए मुमकिन को आया रखा है। अल्लाह की मोहब्बत इतनी खास है कि अगर इंसान जा नमाज पर सिर्फ सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी वह रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को यह समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। अगर नसीब का लिखा सब कुछ होता तो अल्लाह तुम्हें अपनी ख्वाहिश को मांगने के लिए दुआ का रास्ता ना दिखाता। तुम्हारे दिल में अगर अल्लाह ने सजदे में मांगने की चाहत डाली है, फिर कुछ तो हो जिसका होना बाकी है। अल्लाह जिनसे प्यार करता है उन्हीं को मुश्किलात के रास्ते पर डालता है, ताकि बाद में उन्हीं आंसुओं और उसी तड़पते दिल का सुकून बन सके। तहज्जुद के लिए तुम खुद नहीं जाया करते, बल्कि तुम्हें चुन लिया जाता है, और जिसको अल्लाह चुन लेता है वह अल्लाह का बहुत लाडला बंदा होता है। पता है शैतान तुम्हारे दिल में कब वसवसे डालता है, जब उसे तुम्हारा अल्लाह पर तवक्कुल करना पसंद नहीं आता, और पता है उसे तुम्हारा तवक्कुल करना कब पसंद नहीं आता, जब वह तवक्कुल अल्लाह को पसंद आ जाता है। और जानते हो वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उस तवक्कुल के बाद अल्लाह ने तुम्हारे लिए मोजिज़े करने होते हैं, और उन मोजिज़ों ने तुम्हें अल्लाह के करीब तरक कर देना होता है, इतना करीब कि शैतान तुम्हारा सोच भी ना सके। तवक्कुल करो जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने दौरान सलाम किया, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ढकती हुई आग में किया, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पर चलते हुए किया, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अंधे कुएं में किया, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में किया, जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी में किया, जिसे हाजरा ने तपते हुए सहरा में किया, जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम के बावजूद औलाद की दुआ करते हुए क्या बस यकीन रखो, अंधा यकीन। फिर देखो कैसे मुकद्दर बदलते हैं, कैसे पहाड़ रेजा रेजा होते हैं, कैसे मोजिज़ों के दरवाजे खुलते हैं। मुश्किल हो रही है, सब्र करना नामुमकिन हो रहा है, दिल डूब रहा है, खुद को तन्हा महसूस कर रहे हो, लग रहा है कि अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा, तो एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखो, वह कादिर है हर शय पर, वह तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। उससे इल्तिजा करो, वह सब ठीक कर देगा, तुम बस उसके हो जाओ। और फिर देखो कुन फयाकुन का नजारा, जब तुम अपने आप पर जब्त करके खुद को किसी ऐसे काम से रोकते हो जो कि तुम्हारी पसंद का तो होता है, मगर तुम्हारे रब को पसंद नहीं होता, तो तुम जानते हो उस वक्त उस रब को तुम पर बहुत प्यार आता है, और उस लम्हे तुम्हारी दुआ पर कुन फरमा देता है। तुम आज उसकी रजा कबूल कर लो, और फिर वह तुम्हें तुम्हारी रजा नसीब कर देगा। एक दिन तुम देखोगे तुम्हारी आंखें तसु के आंसुओं से भर जाएंगी, तुम अपनी हर तकलीफ को भूल जाओगे और अल्लाह के मोजिज़ों पर हैरान रह जाओगे। तुम्हारे सब्र का अजर बहुत हसीन होगा। मुझसे जब कोई यह पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वह तुम्हारी सारी दुआओं को कबूल करेगा, इतना यकीन कैसे, तो मुझे बहुत हैरत होती है, भला मैं कैसे और क्यों ना करूं उस पर भरोसा। मैं उसके अलावा भरोसा कर ही और किस पर कर सकती हूँ? किसी दूसरे को तो छोड़ो, मैं तो अपनी जात पर भी मुकम्मल यकीन नहीं कर सकती। मैं अपने लिए भी हर बार सही फैसला नहीं कर सकती। वो मेरा मालिक है, मेरा रब मेरा साथी है। मुझे अगर कोई अंधेरों से उजालों में लाया है तो वही मेरा रब है। उसकी मोहब्बत पाक है, साफ है। वो दुआ मांगने की तौफीक देता है, दगा नहीं देता। वो तन्हा नहीं छोड़ता, मेरी सदाओं को सुनता है, तो फिर कैसे ना करूं मैं उस पर भरोसा। मैं जानती हूँ वह सही वक्त पर मेरी हर दुआ पर कुन कह देगा। वह मेरा रब है, प्यारा रब। आप में जितनी ताकत थी आपने उतनी दुआ मांग ली, अब बाकी का काम अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि उन दुआओं को पूरा करने की ताकत सिर्फ उसी के पास है। जो अल्लाह की ताकत पर यकीन रखते हैं उन पर वह अपना खास फजल करता है। और याद रखो अल्लाह का फजल हमेशा मोजिज़ों की सूरत में होता है। बिला सुबह अल्लाह की मदद बहुत करीब है। सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक रब्बुल आलमीन के साथ होता है, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जिस पर तवक्कुल कभी गम में मुब्तला नहीं करता, जिससे कभी उम्मीद मायूस नहीं होती, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देता। बेशक जिसका रब उसका सब बेहतरीन लोग बेहतरीन नियत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम काम संवार देता है, और जिस काम का रब संवार दे उसे कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। जब जिंदगी में ऐसे हालात सामने आ खड़े हो जहाँ तुम्हें लगे कि तुम तन्हा हो गए हो, तो घबराना नहीं। अल्लाह से ना उम्मीद ना होना हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया हो कि अल्लाह ताला से जुड़ने के लिए तुम्हें तन्हाइयों के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। मुस्कुराओ कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी याद के लिए चुन लिया है। अल्लाह ताला तो तुम्हारे लिए वह दरवाजे भी खोल देता है जिसका तुम्हें गुमान होता है, और ना ही तुम कभी उस पर दस्तक
देते हो, तो फिर वह कैसे उन दरवाजों को नहीं खोलेगा जिन पर तुम्हारी मुसलसल दुआओं की दस्तक हो। तो बस सब्र करो और इंतजार करो, क्योंकि वह कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल देता है। वह अपने बंदे को नामुमकिन रास्तों से निकाल कर ही मुमकिन रास्तों पर की तरफ ले आता है। यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर हाल में अल्लाह से राजी रहें। अल्लाह देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। हमारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस एक अल्लाह है। बस उनको राजी कर ले, बस उससे दोस्ती लगा ले। बस अल्लाह ही दिल पर मरहम रखने वाला है, अल्लाह ही दिल को सुकून देने वाला है। जब जमीन अपने ऊपर तंग लगने लगे तो आसमान की तरफ देखें, आपको रोशनी नजर आएगी। जब कहीं कोई उम्मीद नजर न आए, वहाँ अल्लाह पर नजर कर लें, वह आपको थाम लेगा, गिरने नहीं देगा। क्या हुआ, आपको लगता है कबूलियत नहीं हो रही है, मुसलसल मांग रही हैं और थकने लगी हैं? मैं बताऊं, यह जो आप दुआएं मुसलसल मांग रही हैं, आप कबूलियत के सफर पर ही हैं। आपकी दुआ पसंद की गई है, आप चुन लिए गए हैं, आप अल्लाह से जुड़ चुके हैं, आप अल्लाह की खास नजर में हैं। मांगना नहीं छोड़े, मांगना नहीं छोड़े। मांगने वाले तो अल्लाह के महबूब हैं। अब आप अल्लाह की नजर में हैं, आप कबूलियत के सफर पर हैं। इस दुनिया में आने का मकसद लोगों को राजी करना नहीं है, बल्कि अल्लाह को राजी करना है। लोगों के नजदीक मशहूर होना नहीं है, बल्कि फरिश्तों की महफिलों में मशहूर होना है कि वह हमारा चर्चा अल्लाह के सामने जाकर करें। अल्लाह को राजी कर लो। लोगों का क्या है, लोग कभी राजी नहीं होते, और अल्लाह तो इतना सख्ती, इतना आला जर्फ है कि वह माजी के गुनाहों का साया भी नहीं रहने देता, ताना भी नहीं देता, एहसास भी नहीं दिलाता। कुछ खताओं को, कुछ दुआओं को, कुछ बातों को अल्लाह के साथ राज रखा करें। वह ऐसा राजदार है जिससे मुखलिस कोई भी नहीं। अल्लाह से बातें करने की आदत डाल लें, अल्लाह से दोस्ती कर लें। मेरा रब वह है जो मशरिक वालों को देखता है तो मगरिब वालों को नहीं भूलता, जो आसमानों का निजाम चलाते हुए समंदरों का निजाम चलाना नहीं भूलता, जो रात के अंधेरों में सजदा करने वालों को देखता है तो बुराई की महफिलों से गाफिल नहीं होता, जो ऐसा माफ करने वाला है कि 100 साल के गुनाह एक पल में माफ कर देता है, और पलट कर यह भी नहीं पूछता कि पलटोगे तो नहीं। तन्हाई अल्लाह के करीब करती है। लोगों के छोड़े जाने से घबराया ना करो। जब साथ कोई ना हो तो दिल खुद ही अल्लाह की तरफ रुजू करने लगता है। हम खुद ही अपनी बातें अल्लाह से शेयर करने लगते हैं। वो आंसू जो दिन भर रोक कर रखे होते हैं, रात को अल्लाह को अपनी कहानियां सुनाते वक्त खुद ही बहने लगते हैं। इसलिए खुद को तन्हा महसूस मत किया करो। अल्लाह है ना, वही तुम्हारी तन्हाई का सुकून है। अल्लाह को सुपुर्द करना सीखें, हर चीज को, हर फैसले को। जब आप जानमाज पर बैठते हैं तो भारी दिल को खाली करके उठा करें। हर चीज अल्लाह को सौंप कर उठा करें, क्योंकि जो हुआ उसकी रजा से हुआ, जो हो रहा है उसकी रजा से हो रहा है। तो फिर आप मुस्तकबिल की फिक्र क्यों करते हैं? नसीब लिखने वाले को नसीब लिखने का निगहबान रहने दें। आप उसके फैसलों पर सर झुकाकर इत्मीनान से चलते रहें। यकीन करें उस पर, वह बेहतरीन करेगा। इंशाअल्लाह का जिक्र रूह तक में सुकून भर देता है। गम कोई भी हो, फिक्र कितनी भी हो, परेशानी जितनी भी बड़ी हो, दिल पर लगने वाली चोट कितनी ही गहरी हो, दिल को एक बार राजी कर ले, मनवा ले, वह अल्लाह है। मेरा अल्लाह रहीम, मालिक, हाकिम, मेरा सब कुछ दिल पर सुकून हो जाता है। पता है अल्लाह अपना खुद किसे अता करता है। तुम्हें बार बार मुश्किलात में डालकर, तुम्हें बार बार आजमाइश में आजमा कर, ताकि तुम दुनिया से तंग आ जाओ और तुम्हें दुनिया में मदद के लिए कोई सहारा न मिले। तुम जिस तरफ भी निगाह दौड़ाओ तो मायूस हो जाओ और थक कर तुम्हारी निगाहें वापस अपने अल्लाह की तरफ पलट आएं, और वह तुम्हारा मुंतजिर अल्लाह अपनी बारगाह में तुम्हारा इस्तकबाल करे और तुम्हें अपने मोजिज़ों से नवाज दे। मोजिज़े क्या होते हैं? मोजिज़े जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं, वो होते हैं। मोजिज़े कब होते हैं? जब हर उम्मीद खत्म होने के बावजूद भी इंसान अपने रब की कुदरत पर यकीन रखता है, तब होते हैं मोजिज़े। किनके लिए होते हैं मोजिज़े? तुम्हारे लिए होते हैं, हम सबके लिए होते हैं मोजिज़े। मामला जितने भी खराब हो चुके हैं, मुश्किलें जितनी भी बड़ी नजर आ रही हैं, आपकी रखी कुदरत से बाहर नहीं कुछ भी। जब प्यास की शिद्दत उरूज पर, तब ही जमजम का मोजिज़ा हुआ था। तकलीफ का बनना इस बात की दलील है कि आसानी और सुकून बहुत करीब है। दुआ न छोड़ो, यकीन न छोड़ो, मोजिज़े होते हैं। मोजिज़े होंगे जो आंसू तुम रात की तारीख में खामोशी से बहा रहे हो, जो तकलीफ तुम्हारे दिल को बेकरार किए हुए है। वह रब सबसे वाकिफ है।
एक माँ तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती तो वह जो माओ से 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है कैसे देख सकता है। तुम्हारे लिए मोजज़े होंगे, अपने मोजज़ों पर यकीन रखो, उसका कुन तुम्हारी तमाम तकलीफों को मिटा देगा। एक रोज यह दर्द खत्म हो जाएगा, बस अभी सब्र करने का वक्त है। तुम सब्र करो, वह अनजान नहीं है तुम्हारी सिस्कियों से, बस थोड़ा सब्र और देखोगे अपने नसीब का बदलता हुआ पहलू। तारीख रात के बाद का सूरज तुम देखोगे और बहुत करीब है। जिंदगी के बहुत सारे असबाब में से मैंने एक सबक यह भी सीखा है कि जब हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं मामला तो वह रब ऐसी ऐसी जगहों से नवाजता है कि इंसान हैरत जदा होकर सोचता है कि या अल्लाह मेरे सब्र का इतना अच्छा सिला। हम लोग यह सोचने लग जाते हैं कि जिसने बुरा किया उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। यह नहीं देखते कि अल्लाह हमें दुनिया में क्या क्या दे रहा है उसके बदले। और जहाँ तक बात है अगले के मकाफत अमल की तो वह अल्लाह बेहतर जानता है कि कब किसको कैसे और क्या सबक देना है। यूं लगता है जैसे वह खुदा तुम्हें ही देख रहा हो और मुस्कुराकर कह रहा हो और फिर चुपके से कह रहा हो मेरा इतना बहादुर बंदा इतनी जल्दी घबरा गया है। वह वक्त बहुत कठिन होता है मगर खुदा के बहुत करीब कर देता है और फिर खुदा इस दिल को मुतमईन कर देता है। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साजमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।